don't waste your time on Instagram. Yeah, very valid point. Don't take anyone's life so seriously. Take your life seriously. What you are doing, that is important. Apart from what others are doing, it's okay. What others are doing, you have to follow that. Then I would say do a job. Don't break anything. Don't break rules. जो set हुए हैं, job ही करो. Of course. So as a woman, as a female, what challenges you find that in this world, which is male-dominated society, इतनी ज़्यादा है, there is so much discrimination happening. कहीं भी, if you speak to your friends also, you will find that a lot of income disparity is there between men and women. Most important is that how you feel about a woman, that what is their potential. You try, one starts judging. मुझे ऐसा लगता है कि people don't take that chance कि ना हमें ये चीज़ lead करनी है. Actually, you are also leading your life, right? Right. So you don't know at what direction you are going. So I think कि leadership होना ज़रूरी है इंसान में. You have to be disciplined. कि अगर 4 बजे उठना है तो उठना है, 5 बजे उठना है तो उठना है. दोस्त ने कुछ बोला, घर वालों ने कुछ बोला या कोई भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो जर्नी अपने को वैसे ही कंटिन्यू करनी है. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक. आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इट इज़ ऑल अबाउट अनस्टॉपेबल इंडिया. I always used to feel that we should get into this journey wherein unstoppable is a common word for the entire universe. आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत इसी शे से किया जहाँ पे अनस्टॉपेबल इंडिया वॉज द फर्स्ट ब्रांड दैट शी गॉट एसोसिएटेड विथ. अगर हम नॉर्मली बात करें आज की जनरेशन की, तो नॉर्मली वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं. दे आर नॉट हैविंग देयर विजन प्रॉपरली. बट अनलाइक दोज पीपल, द गेस्ट दैट वी हैव टुडे, शी इज़ someone who is breaking the norm and she knows what she needs in life. उन्होंने अनस्टॉपेबल इंडिया से शुरुआत करी. सेकंड, उनके जो ब्रांड है जिसका नाम है नीडा कॉस्मेटिक्स, it also started in the year of 2024, and within 1 year she has got the confidence that she can do good in the market. ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए I will introduce her to the audience. हमारे पॉडकास्ट का नाम है यूथ क्वेक और इसका सिंपल मंत्रा है कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन. और डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज़ है, लेकिन डिसिप्लिन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी परमानेंट. और हमारे जो गेस्ट हैं वो इस लाइन को ज़रूर एग्जाम्पल के तौर पे बखूबी निभाते हैं. सो लेट्स वेलकम हर. Hi Vishal. हाय निदा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Great. So it's a pleasure to have you in the podcast. And actually, I was thinking of having someone who belongs to just this generation, who is trying to achieve her dreams, and who can represent the women community in this field of entrepreneurship. Okay. So I'm glad that this universe had set up this system wherein we both are today in front of each other. Correct. So let's start the podcast with the simple point that how your journey started in this field. As in कहाँ से inspiration मिली कि मुझे entrepreneur बनना है, और cosmetic industry ही क्यों? So the inspiration was simple. When I was a kid, तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ था कि I have to do something on my own. Like बचपन से self independent रही हूँ मैं. तो वहाँ से मुझे ये चीज़ लगती थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है. और बचपन में एक सपना देखा था बस कि ना अपने नाम के साथ मुझे फाउंडर CEO देखना है. Okay. दैट्स इट. मुझे ऐसा था कि एक बिल्डिंग हो, अपना ऑफिस हो, वहाँ नेम के साथ बस ये लिखा हो. तो वहाँ पर मतलब दैट इज़ दी ओनली आई कैन से द इंस्पिरेशन विच केप्ट मी गोइंग. लाइक इवन मुझे 5 साल हो गए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में. 2 इंडस्ट्रीज़ में आई एम वर्किंग. तो वहाँ दोनों में ही मेरा इंस्पिरेशन यही है कि अच्छा लगता है मुझे कि व्हेन समबडी says कि okay, she is the CEO or she is the founder of Unstoppable India and she is the founder of Nida Cosmetics. So that is the only inspiration for me. I am not taking any inspiration कहीं बाहर से कि मुझे किसी से inspiration मिल रहा हो. नहीं, it's only like if I say myself I am self-made and self वैसा, तो it's the same कि inspiration भी self ही है. कि कहीं से मतलब ना मोटिवेशन है ना इंस्पिरेशन है. इट्स ओनली
me and myself. Belief in yourself. I only believe in myself. Nice. That is the only thing, and that is the only mantra I think ki I have in my life. Right. So is there any unique quality that you have that you think that it should be there, possessed with every youth that we have today? I think it's leadership quality. Leadership quality. Because मुझे ऐसा लगता है कि people don't take that chance कि ना हमें ये चीज़ lead करनी है. Actually, you are also leading your life, right? Right. So you don't know at what direction you are going. So I think कि leadership होना ज़रूरी है इंसान में. You have a very valid point, because leadership is something wherein you have that confidence in yourself that you can lead Correct. things, products, and the team also. Correct. Now the question is that leadership, many people have that leadership quality, but they don't have the courage to implement their ideas. So it must have been a very difficult thing to even take this initiative of Nida Cosmetics and Unstoppable India. So what was the motive behind it? Like, what drove you, other than the fact that you wanted to be called as a CEO? That is there, but there must be something which shook you, moved you to get into this. Okay. So here I would say, since my childhood, I'll tell you, I did everything on my own. Not fully, parents did their part, but I used to give tuitions. Okay. Like I am doing my earning since when I was in 6th class. Okay. ऐसा. तो even I have done the मेहंदी artist work. ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ थी, but वहाँ पर भी I learned this thing कि एक चीज़ मैनेज कैसे कर रहे हो. अच्छा. करेक्ट. तो आप जब चीज़ें मैनेज करते हो, तो उसके बाद क्या है ना, जैसे जैसे और एक अर्ली स्टेज में आप जब चीज़ें करते हो ना, तो वहाँ पर आपको उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा पता लगती है. अभी वहाँ पर आई लर्न, मतलब ऐसे ट्यूशन्स देना या बात करना, पेरेंट्स से बात करना, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे मेरी स्पीकिंग आ जाती थी. अच्छा. हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू मैनेज इतने सारे बच्चे या कुछ भी चीज़ है, राइट. तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी. देन when I was doing the मेहंदी work और ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे what I learned is how to communicate with people, how to mold that rude people, how to mold that soft people, कि वो आपसे बात करें, आपके पास आए. तो that thing I think I learned, जहाँ पर अभी मेरी जर्नी ऐसे वो बहुत मोल्ड करती है कि ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ है जो आपने क्या क्वेश्चन मुझसे किया था कि ये जो इस फील्ड में आए, अदर देन बीइंग कॉल्ड एज अ सीईओ, क्या चीज़ थी जो इंस्पायर करी कि मैं इसमें जाऊंगी, इस फील्ड में जाऊंगी, मुझे कुछ अपने लिए करना है? हाँ, तो बेसिकली वही था कि आई एम, मतलब स्टार्टिंग से आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग माई वर्क. वहाँ से मतलब ऐसा था कि चीज़ें मैंने सीखी, राइट, लर्न करी एवरी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एवरी स्टेज पे आप कुछ सीखते हो. ठीक है. तो देन आफ्टर माई स्कूल आई डिड इंटर्नशिप. उसके बाद देयर वाज अ पब्लिकेशन जहाँ पे वी वर वर्किंग, एंड देन वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया, सीखा. मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था मुझे इवन, बट मुझे ये था कि नहीं, अगर मुझे पता, मतलब न्यूज़ वगैरह में मेरे को समझ आया कि ओके देयर इज अ स्कोप, तो आई कैन टैकल दिस. राइट. सो बेसिकली जो नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं और जो अपन कम्युनिकेट करते हैं विथ एनीबडी, सो दैट क्वालिटीज यू वर ट्राइंग टू गेट थ्रू योर अपब्रिंगिंग, चाइल्डहुड में ही वो सब सीख रहे थे. तो आजकल क्या है, एक बहुत फेमस चीज़ डेवलप हो गई है, विच इज़ लाइक अ बिजनेस प्रोसेस को समझने के लिए कि अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो एक रामायण और महाभारत का कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी वर्क करता है. कि आपने शुरुआत करी एज राम जी, कि आपके को फाउंडर होंगे लक्ष्मण जी के तौर पे, उनको आप जोड़ोगे और फिर आप अपने साथ एक और कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी में एक और इंसान को जोड़ेंगे जो कि हनुमान जी के तौर पे होंगे. वो आपके टीम के बैकबोन होंगे कि उन्होंने सुग्रीव के तौर पे एक और वानर सेना को खड़ा किया जो कि कॉम्पिटेंट लोग हैं जो कि उसको आगे बढ़ाएंगे.
फिर सुग्रीव बेसिकली ये काम करेंगे कि उस सेना को फॉर्म करेंगे और आगे रावण जो है, जो कि कंपटीशन है, उस कंपटीशन में से विभीषण को लेके आएंगे कि अपन राज जानेंगे कंपटीशन का, कि कैसे कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम है कि हम मार्केट में आगे बढ़ पाए। तो हमने फिर जब वो कंपटीशन के राज जान लिए, पता कर लिया कि कंपटीशन क्या है, उनसे हमको किस तरह टैकल करना है, फिर हम यहाँ कट टू फिर हम महाभारत में आ जाते हैं, कृष्ण जी बन जाते हैं। और कृष्ण जी के तौर पे हमें पांडव चाहिए। पांडव के तौर पे हमें जैसे अर्जुन जी चाहिए। अर्जुन जी इज लाइक समवन हु कैन टेक केयर ऑफ द ऑपरेशंस, ठीक है। फिर है भीम जी, हु इज द सॉलिड पर्सन, वो है जो कि टीम सिस्टम्स को डेवलप करेंगे। थर्डली है अपने जो नकुल और सहदेव, जो कि मार्केटिंग और ऑपरेशंस के अलावा और जो कलेक्शंस को देखेंगे। हाँ। और इस बीच में एक हमारे जो युधिष्ठिर जी हैं, वो इसलिए फिनेंस का रोल देखेंगे क्योंकि युधिष्ठिर इज ऑलवेज नोन फॉर राइटियसनेस, एथिकल पर्सन, तो वो फिनेंस को देखेंगे। तो इस तरह से हम जब 5 पांडव की जो टीम बनेगी, वो आपको ऐसी टीम बनानी है जो आपको आगे स्केल अप करने में काम आएगी। तो क्या आप इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं कि ये जो नोशन चल रहा है मार्केट में कि इस तरह से हमें अगर किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमें ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए? ऑनेस्टली बोलूं अगर, आई डोंट थिंक सो। अच्छा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं खुद अकेले करती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। एवरीथिंग आई कैन नॉट, मतलब फॉर एवरीथिंग आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द स्टाफ और द पीपल, ठीक है। तो वहाँ पर स्टिल, और एट द अर्ली स्टेज यू आर द ओनली वन हु हैव टू हैंडल इट, राइट। आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली। और कोई आपके विजन के साथ मैच भी नहीं करेगा, ऑफ कोर्स। इवन व्हेन वी हैड अ पार्टनरशिप फॉर अनस्टॉपेबल इंडिया, तो देयर वाज नो विजन, मतलब अदर्स का कोई विजन नहीं था। तो दैट वाज द पार्ट कि वहाँ पर फिर मैं अकेली हो गई। तब मैंने फिर अकेले किया, तो अकेले में क्या है, अपने थॉट्स के साथ अपनी चीज़ें मैं कर पाती हूँ, अपनी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। आई कैन मोल्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो मुझे किसी पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इवेंचुअली व्हेन वी ग्रो, लोग आते हैं, काम करेंगे, करते भी हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पीपल एट अ अर्ली स्टेज, आई थिंक कि आप अपनी अर्ली स्टेज पे आप खुद पे फोकस करो, खुद पे वर्क करो, जो विजन आपका है उस पे वर्क करो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर टीम बिल्डिंग। बट देन एटलीस्ट ये तो है कि मान लीजिए शुरुआत अपन ने करी तो 1 साल 2 साल अपन ने ट्राई किया कि हम बेस बना लें, स्किल्स डेवलप कर लें और वो इकोसिस्टम क्रिएट करने की का होमवर्क कर लें। बट आफ्टर 2 years तो यू ऑल्सो नो कि स्केल अप करने की ज़रूरत पड़ी जाएगी। और जब वो सिचुएशन आएगी तो एक को फाउंडर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर काम हम खुद तो कर नहीं सकते, और अगर हम खुद करने लग जाएंगे तो कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी। अगर हमने लीड जनरेट कर लिया तो उस लीड पे वर्क नहीं होगा, और उस लीड पे वर्क हो गया तो फॉलो अप नहीं होगा और उनको बिजनेस नहीं मिलेगा, और बिजनेस हो गया तो फिर वो रेफरल्स नहीं मिलेंगे, और रेफरल्स मिल भी गए तो फिर उसका आफ्टर सेल्स गड़बड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम होना तो ज़रूरी है। बस ये है कि जो शुरुआत की टीम है, जो 4-5 लोगों की टीम हम बनाते हैं, वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, सो दैट वी कैन रिलाई ऑन देम। वी डोंट हैव टू गेट इनटू द वो जो हमारी आगे की जो 500 लोगों की टीम होगी उनसे तो इंटरेक्शन हो नहीं सकता। सो दैट वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्केल अप करने का भी टाइम पे सोचें, करेक्ट। So who has been, like you are saying that you yourself you are an inspiration, खुद से ही इंस्पायर होके चीज़ें करते हो, but then still while growing up did you had anybody who you look up to as a influencer? एक कुछ तो होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हम इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ मदर फादर में या फिर फ्रेंड सर्कल में, ऐसे कोई हैं कि जो कॉमन इन्फ्लुएंसर रहे हैं? I really like Shraddha Sharma. Okay. Founder of Your Story. Great. I like her very much. She's so passionate. मतलब I love how she talk. I am her fan.
So she is मतलब she is the inspiration. Right. or even I am in the same industry, she is also in the same industry. हाँ, But how she's doing and how I'm doing, I always compare, right. and I always try to figure out what else I can improve, what हाँ, else I can do, because that is also important. Yeah. your story is a very good platform. Mm-hmm. So That's a very right role model to have. correct. So being in an industry, you know ki who to follow. It's very important also because when you follow right people, you learn a lot. A lot. And it can be a stepping stone and a foundation through which you can create your own story. Correct. That way, one should learn from people because it is always said that rather than making mistakes, you should learn from people who have followed that path. Followed that path. Correct. So, what has been your turning moment of life wherein you thought that from here things are going positive? I have got the clarity कि मुझे अब ये करना है. तो ये कौन से ईयर में हुआ, स्पेसिफिकली कब हुआ, और कोई ऐसा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था क्या जिसकी वजह से यू हैड टू डू दिस? ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, बट या आफ्टर 1 year लाइक अनस्टॉपेबल इंडिया के साथ इट वाज अ गुड स्टार्ट. हाँ हाँ. बट देन हमारे जो को फाउंडर्स थे उन्होंने छोड़ दिया. अच्छा. तो वहाँ से इट वाज लाइक कि सोली मेरे पास सारी चीज़ें आ गई थी. तो वहाँ पर आई थॉट कि ओके नाउ दिस इज द थिंग आई हैव टू हैंडल माई सेल्फ. ओके. तो वहाँ पर फिर वो चीज़ थी कि ठीक है अभी खुद ही करना है. तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद भी काफ़ी सारी लर्निंग्स रही हैं, काफ़ी सारे फेलियर्स रहे हैं. इवन आई थॉट टू शट डाउन द कंपनी. अच्छा. वहाँ पर ये थॉट भी आया था कि कुछ और कर लेते हैं या कुछ और ट्राई कर लेते हैं. बट देन ठीक है आए मतलब वो वाला चीज़ है कि ठीक है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ मैं सोच लेती हूँ हाँ हाँ. नेगेटिव सोचने के अलावा. दैट्स इम्पोर्टेंट. तो वहाँ पर फिर वो चीज़ था कि ठीक है मेरे एक क्लाइंट का कॉल आ गया कि ये काम करना है. तो ठीक है भाई फिर मतलब फिर वहाँ पर एक वो पॉजिटिव रे दिखी ना कि ठीक है अभी इसी में रहना है करना है. इसीलिए हाँ वो एक मोमेंट होता है जिससे अपने को फिर कॉन्फिडेंस आता है कि we कॉन्फिडेंस can आता है. continue. करेक्ट. तो मुझे बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज हो गया था कि मैं अकेले कैसे करूँगी, क्या करूँगी. ऑल्दो सारी चीज़ें हैं बट स्टिल यू नो बीइंग इन अ बिजनेस और रनिंग अ बिजनेस इट्स टोटली डिफरेंट. हाँ राइट. आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हो आप जब आपके पास प्रॉपर एक एक थॉट प्रोसेस कह लो या एक राइट पाथ कह लो. हाँ हाँ. तो वो होना बहुत ज़रूरी है. एंड इवन गेट लाइक मेंटेनिंग दैट बिजनेस. करेक्ट. क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं बिजनेस में. बहुत आते हैं. बहुत ज़्यादा आते हैं. मतलब कोई भी मतलब इवन कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो वो अच्छे से रिलेट कर सकता है कि बहुत इवन सबने ये चीज़ बोली है. राइट. इतने बड़े बड़े सारे बिजनेस ओनर्स हैं. वो एक ब्रेक इवन के लिए भी सब कहते हैं कि शुरुआत के 6 महीने साल भर तो यू शुड ऑलवेज थिंक कि यू आर मतलब ऐसा भी होगा कि एवरीथिंग इज गोइंग ब्लैंक, थिंग्स आर जस्ट मूविंग. यू जस्ट हैव टू नीड टू हैव पेशेंस. पेशेंस तो बहुत सिखाए हैं दोनों बिजनेस ने. हाँ. बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाए हैं. मतलब मुझे ना जल्दी नहीं है कुछ पाने की. आई विल टेल यू. मुझे ऐसा है कि ठीक है स्लो चाहिए बट जब भी हो अच्छा हो. हाँ ऑफ कोर्स. ऐसा नहीं है कि मतलब अब मैंने सिर्फ बिजनेस इसलिए नहीं ओपन किया कि मेरे को अच्छा प्रॉफिट होगा या मैं अच्छा करूँगी. नहीं मतलब वो माइंडसेट है ही नहीं मेरा कि वैसे सोच रहे हो अगर हम चीज़ें. तो नहीं स्लो हो अच्छी हो मुझे बस वो है. मतलब आई एम नॉट अ जॉब पर्सन. स्टार्टिंग से मतलब मुझे जॉब से बहुत एलर्जी होती है. Even till now, like it's been 5 years, my parents don't know that I don't do a job. अच्छा अच्छा. So you did a job earlier? नहीं. Never. Because if you have such a strong stand, it usually comes through work, yeah, through experience. But did someone recommended you to not work? नहीं. Okay. So how you got so resisted कि काम तो job तो करना ही नहीं है? I don't know. मतलब it's मतलब I was a commerce student ना तो business में पढ़ती थी.
अच्छा अच्छा, you तो always वहाँ wanted से to get into business only. हाँ, तो बिजनेस का था बट बस हाँ क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है कैसे करना है, हाँ हाँ. तो वो चीज़ है। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है कि जॉब करना है कैसे करना है, मतलब आई एम नॉट अ जॉब पर्सन, मुझे बस इतना पता है कि नहीं करनी मुझसे और नहीं होगी मुझसे। That is so good that you had that clarity कि मुझे करना क्या है, करना क्या है क्योंकि बहुत लोग फिगर आउट नहीं कर नहीं पाते कर फॉर अ पाते लॉन्ग टाइम कि उनको क्या करना क्या है. करना है। एंड द मिनिमम थिंग दैट दे कैन डू इज डू अ जॉब, और जो जॉब मिल जाए वो कर लेते हैं. कर लेते हैं। फिर ये भी है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट क्लियर टू मेनी पीपल. सो पर्पस ऑफ लाइफ डज नॉट मीन कि इट हैज टू बी समथिंग विद व्हाट यू आर डूइंग. व्हाट यू आर डूइंग करेक्ट। कभी कभी इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट. So, have you ever thought about purpose of life? Your purpose of life? माय पर्पस, Hmm. आई वांट टू बी सुपर रिच। Okay. This is the only purpose I have. I was just joking. Hmm. Purpose is, I am not getting the right word to define it right now. Hmm. It's like कि ठीक है, मतलब Do you find any problem to be solved through your work? This is how you can maybe get some idea about the purpose of life. correct. See, with Unstoppable India, I have a purpose. Hmm. Like early stage startups or small businesses, Hmm. they are doing good. ठीक है, but first thing first, everyone don't have the fundings. They don't have the investment, right? Right. But still they want to have a branding. हाँ. तो वहाँ पे we help them कि ठीक है, you can publish or whatever a branding would be needed, we'll do अच्छा. for you. Hmm. ऐसे कि ठीक है, वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे अपन कर सकते हैं चीज़ें। और स्टिल जैसे अनस्टॉपेबल के साथ आई ऑल्सो थिंक, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड फ्यू थिंग्स इन माय माइंड। आई ऑल्सो थॉट टू स्टार्ट अ इंक्यूबेशन सेंटर Okay. कि ओके वी आर डीलिंग विद स्टार्टअप्स, वी कैन हेल्प स्मॉल स्केल्स बिजनेसेस और स्टार्टअप्स। Right. ठीक है, तो आई वॉज थिंकिंग दैट बट इवेंचुअली एवरीथिंग टेक टाइम्स राइट। तो जो भी मैं सोचती हूँ ऐसा कर नहीं सकते, तो स्टिल आई एम गोइंग विद द फ्लो. आई एम फाइंडिंग पर्पसेस, आई एम फाइंडिंग द रीजंस टू कीप गोइंग. तो बस दैट्स क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हम लंबे समय तक करना चाहेंगे वो एटलीस्ट वैसा होना चाहिए विच इज़ योर नेचुरल कॉलिंग. करेक्ट, अगर वो नहीं हुआ तो फिर एट सम पॉइंट इन टाइम वो सैचुरेशन आता ही है. आता ही है, वो कोई भी बिजनेस में हो या कोई भी जॉब में हो वो सब में आता ही आता ही है. है. 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा. यू वन वुड स्टार्ट फीलिंग कि बहुत ही मोनोटोनस हो रही है लाइफ, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट moving, if money becomes the reason for your work, then definitely at one point in time वो situation आती है आती कि है हम सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, कर देते कुछ हैं तो इसको. चेंज करना ही होगा. तो अगर राइट टाइम पे पता चल जाए कि हम चाहते क्या है करना, तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन. एंड मेनी पीपल, बिकॉज द पेन ऑफ रिग्रेट इज हायर देन द पेन ऑफ फेलियर. करेक्ट, क्योंकि मान लो कोई 45 ईयर्स में सोचे कि मैं अब अपनी लाइफ को फिर से बदलूंगा, तो वो चीज़, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकती, बट देन यू हैव लॉस्ट टाइम एंड दैट टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. क्योंकि इट इज़ लाइक ना कि 20-21 साल में यू कंप्लीट योर एजुकेशन, 21 साल से 40-45 साल में यू हैव डन समथिंग विच कैन मेक चेंजेस फॉर द कम्युनिटी, और 45 के बाद भी यू आर प्लेइंग योर सेकेंड इनिंग्स. तो यू हैव मिस्ड द फर्स्ट इनिंग completely करेक्ट, because you don't know the purpose of life. So that way it becomes very relevant that a young person, because our podcast is all about youth and inspiring the youth. So I always want that they should have that idea कि right time पे हमें अपना purpose जान लेना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में वो सब चीज़ें कर पाएँ जिससे कम्युनिटी को हेल्प हो पाए. सो मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक टू स्पीक टू द यूथ एट दिस पॉइंट इन टाइम कि हमें क्या क्या करना चाहिए टू हैव अ बेटर इंडिया, तो व्हाट विल बी द 3 advices that you will give? advices I will give: don't waste your time on Instagram. Yeah, very valid point. Don't take anyone's life so seriously. हाँ. Take your life seriously. What Of you are course. doing, that is important.
apart from what others are doing, it's okay. If what others are doing you have to follow that, then I would say do a job. Don't break anything, don't break rules जो set हुए हैं, job ही करो. Of course. Obviously ना, if you have to do something, आपको थोड़ा skill develop करना रहेगा, आपको चीज़ें explore करनी रहेगी. I'm not saying कि आप business ही करो, but at least don't get into bad influence. हाँ, right. That is important. क्योंकि you are seeing like we all see कि ना social media पे influencers what they are doing. I'm not demeaning or doing any. Right. I'm not saying that influencers are bad. There are also good influencers, but आप उनकी लाइफ से बहुत इंस्पायर हो जाते हो, तो आपको वो नहीं करना है. Follow something which inspire you, like from your within. Yeah, which is more relevant to you. Because it should not be something which feels that it is classy, it is rich, fashionable, but it does not serve your purpose. Correct. तो पर्पस के साथ ही अगर आपको आगे चलना है तो एटलीस्ट आई वुड से रीड सम बुक्स. बुक्स पढ़ो, अच्छा ज्ञान लो. राइट. बाकी तो और फिर क्या है, मतलब आप जैसे जैसे इवेंचुअली आप जैसे निकलोगे ना 12th के बाद अपना, जब सीखोगे चीजें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है. राइट. तो एज अ वुमेन, एज अ फीमेल, what challenges you find that in this world which is male dominated society इतनी ज़्यादा है, there is so much discrimination happening. कहीं भी if you speak to your friends also you will find that a lot of income disparity is there between men and women, and most important is that how you feel about a woman, that what is their potential. One starts judging the potential of a woman just by saying that this to this extent only your worth is there. Because traditionally जिस तरह की बातें हो गई हैं, it has always been that there is a lot of dominance happening, और वो dominance को इतना बर्दाश्त कर लिया किया कि अब they are coming out and इतना कुछ फेमिनिज्म ये सब चीज़ें बाहर आ रही है बात. तो मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म की जो बात इतनी आई है उसका कारण ये है कि उनको एज अ वुमेन बहुत दबाया गया है फॉर 70-80 ईयर्स, और वो दबाव इतना ज़्यादा हो गया कि नाउ दे आर इट इज़ बिकमिंग लाइक अ रेवोल्यूशनरी थिंग. तो दे आर, और कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि वो अपनी बात को सामने रखने में ना दे गेट एग्रेसिव एंड दे समटाइम्स दे गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो. तो जो मेन चीज़ है उससे भी, उसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें वो बोल जाते हैं. तो एज अ वुमेन व्हाट डू यू थिंक कि ज़्यादा चैलेंजेस क्या है बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर? आई वुड से यहाँ पर कि ना गर्ल्स और वुमेन्स आर इमोशनल. उनके पास मतलब ऐसे प्रैक्टिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में डील करना उनको नहीं आता, कम आता है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा दबाया जाता है या डिस्क्रिमिनेशन है, बट अब आई डोंट थिंक कि 2025 में अभी तक इतना डिस्क्रिमिनेशन बचा है. और स्टिल आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद अ बॉय और अ मैन, बिकॉज उसका एक अपना पोटेंशियल है, मेरा अपना एक पोटेंशियल है. राइट. तो वहाँ पर मेरी ये चीज़ आती है कि आई डोंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन और आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म और ये सारी चीज़ें. दे आर सारे इंस्टा के वर्ड्स हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने पोटेंशियल से वर्क करो, वो अपने पोटेंशियल से वर्क करे. कौन नहीं देगा आपको? अगर आपके पास उतना स्किल्स है, उतना माइंडसेट है आपका, तो आपको क्यों नहीं उतना पे मिलेगा जितना लड़के को मिल रहा है? तो ये कोई चीज़ नहीं होती. लेकिन निदा, जैसे तुम कह रहे हो कि तुम चाहते हो कि मेरी जो कंपनी होगी उसमें सिर्फ फीमेल्स काम करेंगे, मेल नहीं होंगे, बट देन यू नो कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल माइंडसेट विच अ मैन हैज़ and an emotional side which a woman has, it will definitely work for any organization. Correct. Right. So how would you manage this limitation that a woman has in terms of practical exposure that they don't have? That is only what I'm going to teach them. Acha. So okay. So you are saying कि you have learned that, and that you will through your ideas, through your mindset, that would be covered. Correct. Because अभी at the situation ना, if we see, तो डिफ़िकल्ट है. ठीक है, किसी भी लड़की, अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सर्वाइव. राइट. ठीक है,
आइदर वो अपने हस्बैंड पे रिलाई करेगी या अपने पेरेंट्स पे. पेरेंट्स अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? शी हैज़ टू डू हरसेल्फ ना. तो वो वाला चीज़ है. तो वहाँ पर ये चीज़ आती है कि दिस इज़ द रीज़न लाइक व्हाई आई वांट माय कंपनी फुल ऑफ गर्ल्स और फुल ऑफ वुमेन, कि जहाँ पे ठीक है अगर कुछ नहीं भी है ना, कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है ना, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ से करके आप अपने आप को सपोर्ट करो. तो दैट इज़ द विजन विच आई हैव. बाकी हाँ, टेक वगैरह में तो वी वुड डेफिनेटली नीड अ मैन, क्योंकि दे आर, आई थिंक दे आर मोर शार्प व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. तो वहाँ पर ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं कहा कि फुल्ली मेरा वैसा होगा. इट्स कि अगर 10% मेल डोमिनेंट है तो 90% मेरा फीमेल होना चाहिए. More employees would be female. फीमेल, दैट इज द थिंग. But then as a society, do you think कि कोई problem है which is going on since a long time and like या फिर mindset का problem जो एक girl को face करना पड़ता है to handle situations like this? Because होता क्या है कि not everybody is courageous like you, because you have followed a path which normally people don't tend to get into. Even normally इस तरह की बात होती है. Even if you see the history also, ज़्यादातर women leaders जो हैं बहुत कम हैं. तो do you think कि वो उनका खुद की कॉलिंग ऐसी है या फिर सोसाइटी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो अपने आप पे भरोसा कर नहीं पाते, या फिर अपब्रिंगिंग भी बहुत मैटर करती है? बिकॉज द वे वी ग्रो, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो हमें बचपन से फियर की बातें बता दी जाती है कि हमेशा रिस्क लेने से डरो, रिस्क मत लो, सेफ रहो, और लड़कियों को स्पेशली कि बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो. तो इतने जो रिस्ट्रिक्शंस बचपन में ही डाल दिए जाते हैं, या फिर कंपैरिजन होता है बॉय और गर्ल में कि बॉयज ये बॉय कर सकता है, ये गर्ल नहीं कर सकती. और किसी के और ज़्यादा नंबर आ गए तो उसको सुपीरियर बना दिया जाता है और या फिर विद इन फ्रेंड्स ऑल्सो बोल दिया जाता है कि उसके बच्चे को देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग. तो ये जो टर्म्स अपन यूज़ कर लेते हैं उससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड. पेरेंट्स या फिर फ्रेंड सर्कल भी हो जाता है जो डाइल्यूट कर देते हैं कॉन्फिडेंस को. तो डू यू थिंक कि एज अ वुमेन बहुत सारे वुमेन लीडर्स बन सकते हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है और जो एनवायरनमेंट हम जिसमें वर्क कर रहे हैं वो एक कारण बन जाता है कि इतने वुमेन लीडर्स आए नहीं? करेक्ट, दैट इज़ दी वन थिंग. इवन टुडे इफ आई सी माई सेल्फ, लाइक बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ चीज़ें जो मतलब एक्सपीरियंस कह लो, बैड एक्सपीरियंस कह लो, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही आई हैं. इफ़ आई एम द पर्सन, आई एम टॉकेटिव, और इफ़ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, वो इसी वजह से आया है. बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारी चीज़ें हैं. तो वहाँ पर मतलब हमारे घर में ऐसा था कि वी कैन नॉट इवन टॉक टू अ बॉय. मतलब अगर हमारा फ्रेंड ही है ना वो स्कूल का, तो इतना डर था ना मन में कि अगर यार मार्केट में भी दिख गया ना तो हम बात नहीं कर सकते. मतलब स्कूल में हम कितनी बात कर लें, लेकिन पेरेंट्स के आगे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने दबाया है, दे हैव गिवन द फ्रीडम, तभी आज हम यहाँ हैं. बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अगर कुछ किसी ने कुछ गलत बोला है तो वो उतनी हिम्मत नहीं होती थी कि घर वालों को बोलो, और बोलते थे तो क्या मतलब पेरेंट्स क्या बोल देते हैं कि तुम घुसो मत, तुम बात मत करो, तुम मत बैठो उनके साथ. तो दिस इज व्हाट एवरीथिंग टॉट मी कि यार ठीक है, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा. अगर आज आई एम टेकिंग स्टैंड फॉर माई सेल्फ, इट्स बिकॉज मैंने चीज़ें बहुत सफ़र की हैं. राइट. क्योंकि नॉट फ्रॉम अ फैमिली, मतलब ऐसी फैमिली से मैं नहीं आती हूँ कि जहाँ पर, और सी मुस्लिम फैमिलीज़ मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कितनी सपोर्टिव होती हैं. हाँ राइट. मुस्लिम फैमिलीज़ आर सो मच ऐसा थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड ज़्यादा रहती हैं. तो बट स्टिल मतलब ठीक है, पेरेंट्स आर ओके कि हाँ ठीक है, उन्होंने फ्रीडम दिया, सब कुछ सिखाया, सब कुछ ये. बट स्टिल कहीं ना कहीं आई फील लाइक दैट दे लैक, कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट
actually we are going through. राइट। वो जो फ्रेंडशिप वाला जो कम्युनिकेशन है वो पेरेंट्स और बच्चों में नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन होता है ना तो बच्चा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता वो है, अपनी वो बातों को, वो वल्नरेबिलिटीज़ को बता पाता है जो वो सिर्फ अपने तक ही रखता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स और बच्चों में वो फ्रेंडशिप हो। I'll tell you, I don't have friends. मतलब जैसे बेस्ट फ्रेंड कह लो तो आई डोंट हैव दैट, आई ओनली हैव वन फ्रेंड। मतलब मेरे को 6th क्लास से जो जानता है, 6th क्लास से मेरे साथ रहा है, जिसने मुझे मेरे हर अच्छे बुरे डिसीजंस पे मुझे सपोर्ट किया है, समझाया है, जो मेरी आधे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की ड्यूटी थी ना मुझे सिखाने की, वो उसने मुझे सिखाया है एज अ मैन। क्योंकि वो वाला चीज़ आता है ना कि कोई लड़का कैसे घर में मतलब बड़ा हो रहा है और वहीं एक लड़की कैसे बड़ी हो रही है, तो वो सारी चीज मतलब इतना कॉन्फिडेंस, अगर बोलने का भी कॉन्फिडेंस आया है ना मुझे, तो वो उसकी वजह से आया है। राइट। मतलब मैं इतनी थी नहीं, मतलब मैं अपने ओपिनियंस नहीं रख पाती थी कि मेरा भी कुछ ओपिनियन है, मेरा भी कुछ पॉइंट सुनो, बट कोई नहीं सुनता था। बट उसकी वजह से क्या है, मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है अभी मैं बोल सकती हूँ, अभी मैं बोलती हूँ, जो गलत है गलत है। अब पहले क्या है, गलत हुआ कुछ, चुप हो जाओ, चुप होके बैठ जाओ, लड़की हो तुम, कोई क्या बोलेगा, 10 बातें बन जाएंगी, ये हो जाएगा वो जाएगा, 10 चीजें लड़की को देखनी पड़ती है और वो चीजें देखी है मैंने। तो अब मुझे नहीं होता, अब मुझे ऐसा है कि कोई बात नहीं, अगर सोसाइटी देख रही है ना लड़की की कुछ चीजें देख रही है, तो लड़के की भी देखे कि लड़का भी तो कुछ गलत कर रहा है ना। वैलिड पॉइंट। और ये ज़रूरी है कि हम वो ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ आगे बढ़े, एटलीस्ट इन 2025। करेक्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने साल हो गए, बट वो सोच वहीं रहेगी तो फिर फायदा नहीं है ना वो फ्रीडम का। वैसा ही है। मैं वही तो कह रही हूँ, इन्फ्लुएंस बहुत गलत है लोगों पे, बहुत ज़्यादा गलत है एक्चुअली। और वो जो सोशल मीडिया में जो कॉन्स्टेंटली हम कंज्यूम कर रहे हैं ना थ्रू आवर आईज, इट इज़ हार्मिंग आवर माइंड, इट इज़ हार्मिंग आवर विजन। करेक्ट। क्योंकि हम मान लो अपने बॉलीवुड के थ्रू ऐसी चीज़ें दिखाएं जो इंस्पायर करें, जो चेंज की बातें करें, तब तो ऑब्वियसली यूथ इंस्पायर होगा। और अगर हम ये देखेंगे कि यूथ जो है वो रील्स देख रहा है जस्ट टू फ्लॉन्ट देयर पर्सनैलिटी और देयर स्किल भी, कि जैसे डांस किया या सिंगिंग किया, हालांकि सिंगिंग डांस इज अ वेरी आर्टिस्टिक फॉर्म एंड इट इज समथिंग विच, जैसे सरस्वती माँ की कृपा सब पे नहीं होती, सो इट इज अ वेरी नोबल थिंग विच समवन पजेस। बट इसके अंतराल ऐसे हो जाता है कि यू आर डूइंग थिंग्स विच आर वेरी नास्टी, विच आर वेरी नॉनसेंस, एंड आई पर्सनली बिलीव कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। कि हम जो गलत करने से अच्छा तो कुछ करो ही मत, बट बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ लेगेसी ऑफ दिस ओनली, जो हम आज करेंगे वो फ्यूचर में हमारी जनरेशन, जो आगे की जनरेशन है, वो यही देख के वही सीखेगी। और इफ़ यू इवन फॉलो द बॉलीवुड ट्रेडिशंस ऑल्सो, बॉलीवुड ट्रेडिशंस में यू विल ऑलवेज फाइंड कि जो मूवीज जिस तरह की बनी है, इट इज़ मोर अबाउट रोमांस, इट इज़ मोर अबाउट लव। लेकिन सिर्फ लव तो जिंदगी नहीं होती ना, नहीं होती। और जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो आफ्टर मैरिज जो चीज़ें होती हैं बिटवीन कपल्स, या फिर जो चैलेंजेस जॉब में होती है, जो बिजनेस में होती है, एक इंसान अपने आप को किस तरह से परसिस्टेंटली मेहनत करके आगे बढ़ाता है, अपनी पोटेंशियल को समझना, फियर के तरफ आगे बढ़ना कि हम फियर से घबराएंगे नहीं, उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, वो सब जो चीज़ें होती है वो पिक्चरों में कभी दिखाई नहीं जाती है। तो ऑब्वियसली फिर यूथ कैसे इंस्पायर होगा? So it brings me to one important point, that how we are having a self talk, कि अपने साथ जो हम रेगुलर बेसिस पे कॉन्वर्सेशन करते हैं, डेली बेसिस पे कॉन्वर्सेशन जो होती है, वो कैसा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए पूरे दिन में अच्छी बातें ही बोलते हैं, या हम अपने आप का वर्थ हमेशा जज करते रहते हैं? हम नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं पूरे दिन में, या पॉजिटिव बातें ज़्यादा करते हैं? क्योंकि इट विल डेफिनेटली डिफाइन आवर फ्यूचर। अब जैसे किसी का गोल है, किसी का विजन है, बहुत अच्छा विजन है, सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो फेलियर चाहता होगा। करेक्ट। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो 1% ही अचीव कर पाते हैं,
ऑब्वियसली इसमें कुछ तो ट्रेड्स ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया. यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड कि अगर 4 बजे उठना है तो उठना है, 5 बजे उठना है तो उठना है. दोस्त ने कुछ बोला, घर वालों ने कुछ बोला या कोई भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो जर्नी अपने को वैसे ही कंटिन्यू करनी है. और इसके बियॉन्ड ये है कि हम सेल्फ टॉक क्या करते हैं, कि मैंने अगर 9 बजे अपने आप के साथ ये वादा किया है कि आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस अर्थ, तो मैं 11 बजे तक मैं उस लाइन को बदल नहीं दूं. करेक्ट. वो लाइन पूरे दिन तक वही चलनी चाहिए कि आई कैन डू वंडर्स. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I would say, and even second part is ki how do you actually are you able to work on this on a daily basis ki your conversation is positive or negative? it's not, मतलब I would say कि 50-50 रहता है. बिकॉज कहीं अगर पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव भी है. अगर नेगेटिव वे में है तो देर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे खुद के अंदर चेंज करनी है. दैट माइट नॉट बी नेगेटिव फॉर मी बट माइट बी नेगेटिव फॉर सामने वाला इंसान, लाइक फॉर यू, फॉर एनी अदर. सो दैट इज द थिंग जहाँ पे यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. Positive in a way to keep you motivated, negative in a way to improve yourself. You can improve while, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों से ही तो आपको पता चलेगा ना कि अच्छा आप क्या गलत कर रहे हो. Right. अगर मैं पॉजिटिव करती रहूँ तो मैं तो फिर भगवान नहीं बन जाऊंगी. तो नेगेटिव भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना. और येस आई डू सेल्फ टॉक, मतलब सेल्फ टॉक तो नहीं, बट whenever I go to sleep I think a lot. I have this overthinking problem. I think a lot. मतलब सोचती बहुत हूँ मैं कि नहीं ऐसे कर सकती थी, या मैं अगर मैं किसी को कुछ बोला भी है तो वहाँ पर मैं उसको ऐसे बोल सकती थी, शायद ये वे मेरा ज़्यादा अच्छा होता, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता उसको कन्विंस करने के लिए, या उसको मतलब मेरा मैसेज देने के लिए. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपको नेगेटिव भी सोचना पड़ता है कि ठीक है, नेगेटिव नॉट इन अ वे कि आप खुद को डिमीन कर रहे हो, बट इन अ वे कि आप उसको इम्प्रूव कैसे करो, या आपको कैसे इम्प्रूव करना है या कैसे करना चाहिए. फिर आप उसको पॉजिटिवली थिंक करो कि भाई ठीक है, अगर ये सेंटेंस है तो इसको मैं पॉजिटिव वे में कैसे बोल सकता हूँ कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और मेरी बात की बात रख दी जाए. तो मुझे तो यही लगता है कि दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एवरी टाइम यू कैन नॉट बी पॉजिटिव और एवरी टाइम यू कैन नॉट बी नेगेटिव. क्योंकि अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहेगा या नेगेटिव माइंडसेट रहेगा तो एक्चुअल में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव बहुत स्ट्रांग है. Because you have to review, you are rightly saying कि रिव्यू तो करना होगा कि हम नेगेटिव क्या कर रहे हैं जिसको हम पॉजिटिव में. बट इसके बियॉन्ड एक चीज़ ये आ जाती है कि हम अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छी चीज़ें करें, लेकिन इवन अगर हमारे पास मान लो कोई ऐसा पर्सन आ गया जो हमारा कॉन्स्टेंटली हमें नेगेटिव बातें बोलता है, चाहे वो कोई पार्टनर हो या फिर फैमिली मेम्बर हो या कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो अगर ऐसा किसी इंसान की संगत में आप हो जो हमें हमारी ड्रीम्स के बारे में नेगेटिव बोलता है, या हमें वो चीज़ को के लिए कॉन्कर करने के लिए या वो फियर को कॉन्कर करने के लिए अगर वो हमें गाइड भी प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो वो कितना मुश्किल हो जाता है. बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज सेल्फ टॉक तो एक बात है जो हम अपने आप के साथ बात करते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड एक चीज़ ये है कि हम किसके साथ हैं, किसकी सराउंडिंग में हैं. करेक्ट. और वो सराउंडिंग अगर अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यू कांट स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू कांट स्टे अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स. तो ये तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है कि हम चुनाव सही करें, पेरेंट्स का तो नहीं लेकिन फ्रेंड्स का, कि ऐसे लोगों के संगत में रहें जो हमें पॉजिटिवली ऑनर करें. हाँ. और हमारी सोच को भी ऑनर करें, बिकॉज फ्रेंडशिप इज समथिंग विच वी चूज, दिस इज द ओनली रिलेशन विच वी चूज. करेक्ट. बाकी सब चीज़ें तो भगवान देते हैं. और ज़्यादातर होता क्या है कि वी आर नॉट एबल टू स्टे अलोन विथ आवरसेल्फ. दैट इज अ चैलेंज. जब हम अपने आप के साथ रहते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां पता चलती है, हमें ये पता चलता है कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, तो वो हमें डराता है वो चीज़. तो हम चाहते हैं कि हम लोगों के सराउंडिंग रहे तो हम बचे रहेंगे. तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त चाहिए होते हैं. और जो लोग कम दोस्त हैं जिनके, और जो अपने साथ ज़्यादा समय बिता पाते हैं विथ सॉलिट्यूड, आई बिलीव दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू imbibe in yourself. So self talk
जैसे यू सेड कि यू आर 50-50 नेगेटिव 50 पॉजिटिव, तो ऐसा होता है क्या कभी कि कोई बहुत ही मुश्किल वक्त कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में यू केम एंड इट वाज द बिगेस्ट लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज you are an entrepreneur, you meet so many people, you meet so many clients who at times does not understand the line which has to be drawn, the barrier that is required to be followed when you deal with a female. तो ऐसा कभी हुआ है कि बहुत ही मुश्किल चीज़ में you got into, और वो situation can become an example which you can tell to the youth कि तुम अगर आगे जाके बिजनेस वुमेन बनना चाहते हो तो दीज आर द थिंग्स एज अ फीमेल यू शुड टेक केयर सो दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्व्स. इन्फ्लुएंस इज मच इम्पोर्टेंट. आप किसके साथ रहते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप रिश्ते ख़त्म नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर यू शुड लर्न इग्नोरेंस. आई वुड से इग्नोरेंस, क्योंकि मतलब माई पेरेंट्स आर सपोर्टिव बट स्टिल देयर इज अ माइंडसेट थिंकिंग. जो मेरा माइंडसेट है ऑब्वियसली वो उनका माइंडसेट नहीं होगा, बट स्टिल जो मेरी थिंकिंग है उनकी थिंकिंग है बहुत डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते, बट द थिंग इज कि वहाँ पर चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो फिर आई हैव टू इग्नोर. मतलब मैं अपने ही घर में रह के उनके ओपिनियंस को इग्नोर करती हूँ. मतलब आई एम नॉट सेटिंग अ इन बैड इन्फ्लुएंस फॉर एनीवन, इट्स माय थिंग कि ठीक है अगर इफ आई हैव समथिंग टू डू तो मैं उसको अपने हिसाब से करूँगी ना. वहाँ पर मुझे किसी के नेगेटिव थॉट्स की ज़रूरत नहीं है. और फिर अगर मुझे लगता है कि कोई नेगेटिव ही बोलेगा तो आई डोंट टेल टू देम. मतलब अगर मुझे लग रहा है मेरी फैमिली उसके बारे में कुछ नेगेटिव ही बोलेगी कि नहीं, मतलब I'll tell you clear example. When I told my parents कि I will do full time business, तो they were like कि नहीं, you have to do a job, और job is like you can get a fixed amount कि आप अपनी responsibilities को पूरा कर सकते हो. तो तब से फिर मुझे लगा कि I should not tell them कि I am not doing a job, I am full time into my business. तो यहाँ पर this was the challenge for me कि उसको, क्योंकि see business कन्विंस करना नहीं, बिजनेस इज मतलब इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रॉफिट्स. करेक्ट. तो कभी आपको डाउनफॉल भी देखना पड़ता है, कभी आपको अच्छा भी देखना होता है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं. तो वहाँ पे वो चीज़ चैलेंजिंग थी कि मतलब कभी मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो हाउ आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आई हैव. सो दिस वॉज द चैलेंज. But then convincing your parents that कि this is the step which I have followed, अब मुझे इसी लाइन में जाना है, ये कभी have you told them कि I want to do business only? हाँ, they know, मतलब they know that I am into business, but उनको ऐसा लगता है कि that is your मतलब both the business are part time. My full time job is somewhere else. I'm doing a job and then मैं अपना side by side business कर रही हूँ. But it's not like that. मेरा full time business ही है. बट वॉट डू यू थिंक कि गर्ल्स इतने फिरोशियस क्यों नहीं हो पाते? हालांकि वी नो वी फॉलो अ ट्रेडिशन ऑफ अ फैमिली वेयर इन पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव, सो प्रोटेक्टिव. क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा होता है कि दे आर लाइक एट द एज ऑफ 12-13 वो फ्री हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो इंडिपेंडेंटली खुद ही करते हैं लाइक यू आर डूइंग. लेकिन वो वहाँ पे तो ट्रेंड है, वो ये चलता रहता है. तो वहाँ पे पीपल आर वेरी फिरोशियस, वेरी बोल्ड. Girls are very bold. They can take their stand. They can even say something which is required to be said. लेकिन हमारी जो सोसाइटी जिस तरह बन गई है उसमें लड़कियों को उन चीज़ों में हेल्पलेस फील करना पड़ता है जो जिसमें उनकी गलती नहीं होती. एंड इट इज़ सो आयरॉनिकल एंड इवन बैड फॉर द वुमेन. मतलब और ये इतने साल से वो बर्दाश्त कर भी रहे हैं. तो डू यू थिंक कि हमें एक स्टेप इसके बियॉन्ड लेना चाहिए कि गर्ल्स आर मोर एक्सट्रोवर्ट, गर्ल्स आर मोर एबल टू बी फ्री टू स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट टू. अगर कोई चीज़ बुरी हुई है तो बोलने में वो लड़कियों को शर्म नहीं आनी चाहिए, उस लड़के को ही आनी चाहिए जो उसने गलत किया है. बिकॉज द वे जब वो मी टू मूवमेंट भी आया था, हाँ,
विच यू मस्ट बी नोइंग, तो उस टाइम भी ऐसा नहीं हुआ था कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हो। हमेशा इस तरह ही, ऐसे ही इवन फैमिलीज भी यही बोलती है कि ऐसा क्यों बोला, उसको बोलना ही नहीं चाहिए था, है ना। और जो इन्फ्लुएंशियल है, वो जो पावरफुल है, वो हमेशा इस बात का फ़ायदा भी उठा लेते हैं कि कोई बोलेगा नहीं तो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन, हम बच भी जाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक निदा कि हाउ वी कैन टेक दिस थिंग फॉरवर्ड, हम कैसे ये चेंज ला सकते हैं कि गर्ल्स बिकम मोर फिरोशियस, मोर विलिंग टू स्पीक, उनको कोई इतना बंधन नहीं मिले, मतलब फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम फ्रेंड्स ऑल्सो। फ्रेंड्स तो उन्हीं की जनरेशन के होते हैं, उनके साथ के होते हैं, फिर भी फ्रेंड्स भी बहुत बार सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा क्या किया जा सकता है, बिकॉज यू बिलोंग टू दिस जनरेशन एंड व्हाई आई एम आस्किंग यू, देयर इज अ रीजन कि I can see that you have a very strong personality. Thank you. You are a very bold personality. That is why you have started your career in the field of business. You are a leader, and God has gifted you with this energy. Thank you. So since you have that energy, I am sure you will be able to answer this question properly. कि ऐसा अपन कैसे कर सकते हैं कि गर्ल्स बहुत एक्सप्रेसिव हो पाए? I think, see, if I talk about parents, पेरेंट्स इतना लड़कियों को टॉकेटिव नहीं बनाते हैं। हाँ। उनका ज़्यादा ये होता है लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे, रिलेटिव्स हैं, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना डाल दी जाती है। और ये चीज़ सिर्फ एक ही लड़की नहीं, अगर आप यहाँ पे सारी लड़कियों को बुला के भी पूछोगे ना तो शी विल से द सेम थिंग, नो मैटर उनके पेरेंट्स ने उनको कितनी फ्रीडम दी है, बट स्टिल वहाँ पर एक चीज़ आती है कि दे बाइंड यू, राइट। एंड वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर कैन हेल्प यू आउट, कि आप किस टाइप के पार्टनर के साथ रहते हो, राइट। बिकॉज माई पार्टनर इज सो सपोर्टिव, और he has taught me so many things. Right. Like अगर still I will say कि अगर मैं इतनी confident हूँ, मैं कहीं पर भी मैं बोल पा रही हूँ, it's because of him. I am a very, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा introvert, बहुत introvert, मैं नहीं बात करती थी। तो जैसे सर्कल में फिर मैं रहने लगी, I only have 2 friends. एक तो माई पार्टनर एंड वन इज़ माई ब्रदर, ऐसा। तो मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ और वहाँ से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिलता है, क्योंकि लड़कों का क्या माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। इफ़ आई एम स्टेइंग विद अ गर्ल, लड़की क्या बात करेगी, घर वालों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, करेक्ट। और ज़्यादा नहीं होगा उनके पास तो अपनी वो लव लाइफ डिस्कस करने लग जाते हैं। True. वहाँ पर अगर आप लड़के के साथ हो ना, तो they'll tell you 10 चीज़ें, they'll tell you 10 न्यू थिंग्स, कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में, पॉलिटिकल बारे में, आप किसी के भी बारे में डिस्कशन कर रहे हो, और रैंडम डिस्कशन चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड और पार्टनर चूज करना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बट स्टिल आई वुड से कि फ्रेंडशिप में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्रेंडशिप मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैड इन्फ्लुएंस भी रहता है, और आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वहाँ पर दिल सपोर्ट यू, दिल नॉट से कि ये चीज़ तूने गलत करी है या ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, दिल नॉट से, बट आप पार्टनर कैन से कि यहाँ पे तुम गलत थे, राइट, यहाँ पे तुमने गलत किया है। तो दैट, मतलब वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सही और गलत बताए। ट्रू। कोई भी फ्रेंड ये नहीं होता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो और दे आर सपोर्टिंग यू। वैसे तो फ्रेंड्स होने ही नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए ना। तो दैट वही ना, तो कहीं ना कहीं दे आर बाइंडिंग यू ना, सेम लाइक योर पेरेंट्स, कि तुमको एक नेगेटिव उसमें बांध दिया है कि नहीं, हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, करो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इवन जो कंपैरिजन होता है विद इन सिबलिंग्स, कि ब्रदर सिस्टर में जो कंपैरिजन करते हैं, या फिर 2 बच्चों में करते हैं कि तुम वो जो उनका जो फ्रेंड है, पेरेंट्स के जो फ्रेंड है, उनके बच्चे को देखो, तो ये भी कहीं ना कहीं वो गर्ल के लिए खराब हो जाता है। फॉर अ गर्ल, कि मान लो उसके ब्रदर से कंपैरिजन हो रहा है कि अपने भाई को देखो या उस लड़की को देखो, वो कितना अच्छा कर रही है, तो वो जितना हर्ट करता है उससे ज़्यादा हर्ट कोई चीज़ नहीं करती। एंड एक बात ये हो जाती है कि हम जब एज अ पेरेंट बहुत
बहुत हद तक ऐसा हो जाता है कि हम बच्चे की भलाई के बजाय ये सोचते हैं कि हम एज अ पेरेंट अच्छे साबित हो जाए सोसाइटी में। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये बहुत बड़ा मिसमैच है कि वी वांट आवर किड्स टू राइज, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं हम, उनकी वेलबींग के बारे में अच्छा सोचते हैं, बट इनडायरेक्टली हम ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम कितने अच्छे माँ बाप हैं, और ये चीज़ करने के चक्कर में हम अपने बच्चे का बुरा कर जाते हैं। और मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चे की भलाई है कि वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, कोई स्पोर्ट्स में या कोई सिंगिंग में या फिर कोई और चीज़ जो स्किलफुल हो, कुछ भी हो सकता है वो। अब बच्चे की ये चाहत है, लेकिन हमें ये दिखाना है क्योंकि ट्रेडिशनली ये चलता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे नहीं आते, 95 तो आने ही चाहिए, उससे कम तो कुछ होगा ही नहीं। तो जब ये बातें होने लग जाती है तो फिर बच्चे को ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, फिर दे स्टार्ट टेकिंग हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल, जबकि फर्स्ट स्कूल अगर कोई है वो पेरेंट्स ही है। एंड दैट एनवायरनमेंट इज अ बिगर थिंग, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि एनवायरनमेंट मैटर्स within organization also। अगर if you take care of your employees then they will take care of your profits। करेक्ट। लेकिन होता उल्टा है कि हम प्रॉफिट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं और एम्प्लॉयज को साइडलाइन कर देते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके प्रॉब्लम क्या है, वो सब छोड़ो, प्रॉफिट्स आना चाहिए। तुम 8 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, पैसा मिलना चाहिए। सो दैट इज अ प्रॉब्लम which is required to be resolved। आई थिंक ना यहाँ पे आई बिलीव कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपनी पेरेंटिंग पे ध्यान देना चाहिए कि हाउ दे आर डूइंग, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चे के दिमाग में नेगेटिव चीजें डालोगे, करेक्ट, दिस इज अ नेगेटिव वे ना कि आप कंपेयर कर रहे हो, आप उनको कंप्लेन कर रहे हो। वेरी मच। एक नर्सरी का बच्चा या एक फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना समझता है, उसके दिमाग में तो ये चीज बैठ जाएगी ना। ट्रू। लास्ट तक तो उसको फिर लेके चलना है वो बर्डन। तो आप अभी से अगर उसको स्टार्टिंग में उसको एक बर्डन दे दोगे या नेगेटिव एक कुछ भी आप थॉट दे दोगे, वो सोचेगा उसके बारे में, वो आज नहीं कल नहीं, अपने 10 साल के बाद 11 साल के बाद वो सोचेगा ये चीज। हाँ, और वो उसकी पोटेंशियल को जज करने में इशू बनेगा कि वो ये सोचेगा कि उसकी पोटेंशियल करूं नहीं करूं, हाँ, उसकी पोटेंशियल वो है क्या जो उसके माँ बाप सोचते हैं उसके बारे में, करेक्ट, या फिर वो है जो मैं खुद मानता हूँ। तो दैट इज सच अ बैड थिंग, जो कि इनडायरेक्टली वो समझ ही नहीं पाते कि वो कितना बुरा हो जाता है। करेक्ट। सो मैंने देखा है कि जितनी एजुकेशन की बातें होती हैं, हालांकि विद इन हिंदूज और अदर कम्युनिटीज़ में भी एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट एट पार, या फिर वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। जिस तरह की पढ़ाई होती आई है वो ही रेगुलरली चलता है, वो इतना डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो इवन मुस्लिम्स में भी ऐसा ही होता है कि हमने देखा है ज़्यादा एजुकेशन को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। तो what have you faced as a challenge in terms of education? Like, do you think that the education infrastructure is already very good, and or it requires improvement? And even the mentality that as a parent in your community has कि पढ़ाई को कितना महत्व दिया जाता है? See, every parent is different, but my parents are totally different in this, and they have always been in support for studies. Right. उन्होंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि आप पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, क्योंकि एक certain age के बाद सब यही बोलते हैं ना, लड़की है शादी कर देंगे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला, और ये चीज़ मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत अच्छी लगती है। Nice. कि they have never been like this कि नहीं पढ़ाई मत करो, पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला है आपको जितना पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जो करना है आप करो। मतलब they are like कि you are free birds, आपको जो करना है करो। बट वहाँ पर भी I feel like कि as a child अब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अब मैं जैसे बड़ी हूँ, तो मैं अब वो समझ पा रही हूँ कि अगर आपने हमें फ्री बर्ड की तरह छोड़ भी दिया, बट वेयर इज द गाइडेंस? राइट, देयर इज नो गाइडेंस। गाइडेंस तो चाहिए ही। तो वो वाला चीज है ना कि सिर्फ आप छोड़ भी नहीं सकते हो और आप सिर्फ बांध के भी नहीं रख सकते। तो बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इन माय केस इट्स लाइक कि आपको समझना पड़ेगा
हाँ समझना चाहिए आपको कि आप कैसे कर रहे हो, या बच्चा कैसे कर रहा है, या बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है स्कूल में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये पेरेंट्स की तरफ से चीज़ आती है। आई डोंट थिंक कि, और मैं उनको ये चीज़ सिखा नहीं सकती, राइट। बट डू यू थिंक कि प्रॉपर स्कूल्स अभी है एज इन अक्रॉस इंडिया जो हाँ, कि अभी तो आई थिंक कि अभी अगर स्कूल्स नहीं भी है ना, हाँ तो स्टिल ऑनलाइन एजुकेशन बहुत है। ओके ऑनलाइन आप डिजिटल स्टडी कर सकते हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है या कुछ भी चीज़ है तो यू कैन। नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट हम जब पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे था थोड़ा डिफिकल्ट कि हाँ कैसे करना है। वी आर गोइंग फॉर ट्यूशंस, वहाँ पढ़ रहे हैं। बट डिजिटल एजुकेशन इज वेरी लाइक डिस्ट्रैक्टिंग क्योंकि इट इज़ मल्टीपल इंफॉर्मेशन और आदमी जज नहीं कर पाता कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। सही है। तो क्योंकि एक अफिलिएशन चाहिए, एक बोर्ड चाहिए जो रेगुलेट कर पाए चीज़ों को कि इस तरह से चीज़ें होंगी, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, लोग बच्चों को ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बच्चों को नहीं पता चलेगा ना कि कहाँ क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है। तो वो क्योंकि टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो Also बैड bad. एंड हाफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो Also बैड। bad. तो राइट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो उस तरह से यू थिंक कि बहुत सारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए स्कूल्स के बारे में एंड मतलब जो ऑलरेडी है नहीं ऐसा कुछ यू गवर्नमेंट स्कूल्स आर ऑलरेडी वर्किंग गुड, अच्छा क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। तो वहाँ पर भी जब एंटरप्रेन्योरशिप हाँ आया था वर्ड, तो तब हमारे क्लासेस होते थे। ओके Even when after my business I went to school, like after 1 or 2 year, तो even I took the entrepreneurship classes. ऐसे 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों की I took the class and I gave them the guidance कि ठीक है, what you can do like after this, what should be your path, Right. आप कैसे कर सकते हो। So I don't think कि government is not working, government is working, but still there is, सी अगर मुझे सीखना है तो मैं सीख लूंगी, हाँ नहीं सीखना तो फिर मैं नहीं सीख सकती ना। वो डिजायर तो होना ही चाहिए। वो डिजायर की बात है ना, अगर मेरे में डिजायर है कुछ सीखने की तो मैं सीखूंगी, नहीं तो नहीं है तो नहीं सीखूंगी ना। मुझे क्यों इंटरेस्ट आएगा एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस में, मुझे इंटरेस्ट था ना, तभी आई एम सिटिंग हियर। राइट अगर अभी तो सबको मिल रही है ना, और जबकि वो चीज़ मिल रही है आपको 2022 या 2023 से चल रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रही है। हाँ तो सारा चीज़ मैटर वही करता है ना कि आपको क्या करना है। पर ये है कि वो रूट कॉज समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है। कि अगर हम सोचें कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ों की कमी है और मान लो वो चीज़ें हैं भी और बच्चे की वो डिज़ायर ही नहीं है पढ़ने की या फिर उस लाइन में जाने की, तो फिर तो वो मतलब नहीं है ना। सप्लाई है लेकिन डिमांड ही नहीं है। सो नाउ इट्स लाइक अगर शुरुआत के 15-20 सालों में बच्चे का कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाता है टू बाय वर्ड्स, तो फिर वो उसके पढ़ने की इच्छा या फिर उसके लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ओनली एजुकेशन मैटर्स। एजुकेशन डेफिनेटली मैटर्स बिकॉज यू कैन टेक योर चॉइसेस in an informed manner, but then at the end of the day it is also important कि how do you understand about yourself, what do you understand about yourself कि तुम्हें चाहिए क्या, what is your purpose and in which direction you want to go। अब कोई साइंस करने के बाद भी ऐसे लोग भी हैं जो साइंस पढ़ लेते हैं और फिर वो कुछ ऐसा कुछ करते हैं which is related to MBA और finance। तो फिर इमेजिन उस बच्चे की क्या हालत होती है कि जिसने इतनी मेहनत कर ली, उसने अपने माइंड को इतना सैचुरेटेड कर लिया पढ़ के, और फिर वो चीज़ कर रहा है जो उसको रेलेवेंट भी नहीं रहा, उसकी पढ़ाई वो रेलेवेंट नहीं रही ना उस चीज़ की। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि उस सही टाइम पे वी शुड आइडेंटिफाई दैट। सो नाउ हाउ वुड यू एम्पावर like women in your as a employees, how would you empower them, what do you think कि तो क्या कर सकते हो uniquely which can set apart the thoughts of a woman, because you have said कि things were not good in the past। अब जैसे जो चीज़ें already traditionally होती आई है उसमें तो obviously change चाहिए। तो being a young entrepreneur, what do you think, what new things you can do which can empower women, because you want an organization
मेजॉरिटी ऑफ कि वुमेन ही हो? I would say कि see about how would I answer this question? Or maybe how would you maintain a good culture in your organization जिससे you will always stay relaxed that your employees will do the job? Okay, I can relate this question now. Hmm. See, every person I think is creative in their own way, हाँ. right? So this is the thing which I always do with my employees, that I give them an idea कि ठीक है, this is the idea and this is the vision which I have in my mind, because I am very creative person, Right. and then I give that vision to them. Let's see now कि कितने लोग उस विजन को लेकर उसमें और क्रिएटिविटी डाल सकते हैं. Right. तो वहाँ पर आई थिंक कि वहाँ पर आई इनकरेज देम टू टेक ओनरशिप फर्स्ट थिंग, कि ठीक है, अगर कोई चीज़ दी जा रही है तो उसको कैसे करना है. वहाँ पर चीज़ें लगती हैं थोड़ी कि ठीक है, आप अपना लेके आओ, अपने थॉट्स लेके आओ. वहाँ पर वो चीज़ आती है कि ओके, यू आर ओपन टू स्पीक. हाँ, right. आपका जो भी विजन है, आपके जो भी थॉट्स हैं, यू आर मतलब आई हैव गिवन यू द प्लेट, नाउ यू सर्व Right. व्हाट यू हैव. Because you are giving that liberty to your employees कि they can speak, they can share their thoughts. Correct. कि how the company can be taken Correct. forward. Because सबसे important यही है कि you get the opportunity to be heard. आज की तारीख में people Correct. don't have time to listen also. Listen, and even with my, like, I have few female employees and I ask them, like, I talk to them privately कि do you have any problem, or are you facing any problem, Right. are you facing any challenges, let me know, I'll help you out, I'll figure Right. out something. So this is the thing, like, because I know as a woman, I know what challenges she can face. So it's not a bad thing to talk to a, but अभी इसमें ये भी चीज़ सोचेंगे कि कल को आपके पास 1000 होंगे तो आप 1000 से बात करोगे. मेरे पास अगर 1 लाख भी होंगे, मैं 1 लाख से भी बात करूंगी. हाँ, now तो you have that digital option Correct. through which you can interact with a huge number of Correct. audience. पहले Correct. ये नहीं था. पहले जब ऑफलाइन था तो you cannot interact with everybody. Now through digital innovation technology, obviously you can interact. करेक्ट. तो वो चीज़ है कि ठीक है, अगर लगता है कि बात करने की ज़रूरत है तो आई डेफिनेटली टॉक टू देम. और एंड बाय आई वुड से कि विद गॉड ग्रेस दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि ये चीज़ मेरे अंदर है कि अगर सामने वाले को प्रॉब्लम है तो दे कम टू मी एंड दे शेयर विद मी. तो वहाँ पर भी मुझे आई फील ब्लेस्ड कि ठीक है, जो चीज़ मतलब जो मोटिव मैं लेके चलना चाह रही हूँ वो कहीं ना कहीं फुलफिल अगर हो रहा है तो इट्स वेरी गुड. Right. Because Nida, what I've realized over a period of time कि जो थियोरेटिकली बोला जाता है ना, जो स्टैंडर्ड मिशन विजन कंपनी का रख दिया जाता है, उससे बहुत प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट होती है लाइफ. करेक्ट. और इवन कंपनी के स्टैंडर्ड्स भी वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए इतना हेल्दी कल्चर नहीं रहता. जैसे कोई विजन बताते हैं कंपनी वाले कि आई वांट द बेस्ट प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स, एंड मिशन इज लाइक आई वुड टेक केयर ऑफ माय एम्प्लॉइज टू डू दैट. पर और फिर उसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हम ये सब ध्यान रखेंगे, सारी पॉलिसीज को ध्यान रखेंगे, रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखा जाएगा, किसी भी एम्प्लॉइज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वुमेन सेफ्टी की ध्यान रखी जाएगी, हरासमेंट नहीं होगा. तो ये सारी बातें सुनने में पढ़ने में कितनी अच्छी लगती है. और एज अ यंग एंटरप्रेन्योर या फिर एज अ यंग एम्प्लॉई जब वो पढ़ाई करके जब वो एंटर करता है और ये सब जब लाइन्स पढ़ता है तो वो हमेशा यही सोचता है कि यही सच है. लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है कि इट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग एंड द रिलेशंस दैट यू हैव विद द अदर पर्सन, योर सुपीरियर. और अगर if suppose your values are very high, very strong, and that does not fit with the culture of ego boosting and it does not go well with the senior, then you will not be able to grow, survive there. Survive. So, and situation is like every person has a lot of potential to thrive. Correct. But the survival becomes a question. And it goes to that
situation wherein you are struggling to even live, because obviously you have to do things which are not supporting your values. Because if you even try and understand the fact that हम corruption से बहुत ज़्यादा हमेशा से ही जूझते रहे हैं, और करप्शन के लिए ये बोला जाता है कि सिस्टम ऐसा है, बन जाता है कि इफ़ यू डोंट फॉलो दैट लीड यू विल बी आउट ऑफ दैट सिस्टम. सो दैट इज़ वाई वो करप्शन कंटिन्यू रहता है, हर जगह ही रहता है. और करप्शन एक चीज़ है, और एक चीज़ ये है कि मेंटल हरासमेंट जो हो जाता है विद ऑल द एम्प्लॉयज़. सो दैट इज़ वाई इट मेड मी ask you this question ki how will you maintain a good culture in your company. So because it is a need of the hour for the future generation that they don't suffer like the people who have suffered in the past. I think startup owners के साथ अगर आप रहते हो ना, तो they give you freedom. हाँ. जहाँ पे यू हैव टू ओनली वर्क विद योर एफिशिएंसी, मतलब वहाँ पे सिर्फ आपका टाइम लिमिट कुछ नहीं है. हाँ हाँ. सो एक रीज़न ये भी है कि आई नेवर से कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक काम करो. इट्स योर कॉल, यू डिसाइड आप किस टाइम पे कंफर्टेबल हो. अच्छा. बट वर्क हैज़ टू बी डन. राइट. दैट्स द ओनली कंडीशन. उसके अलावा आप कुछ भी करो, मेरे को मतलब नहीं है. एब्सोल्युटली. आउटपुट मिलना चाहिए. करेक्ट. अदरवाइज तो वहाँ पर क्या है ना कि बाउंडेशंस कुछ नहीं रखो, ठीक है, बट वहाँ पर फिर वो चीज़ भी टैकल करनी पड़ती है कि कोई काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. हाँ. तो इसीलिए वी सेट गोल्स कि ठीक है, दिस इज योर गोल. अब आप इसको एक हफ्ते में करो, आप इसको एक महीने में करो, दैट्स योर कॉल. सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ नीडा कॉस्मेटिक्स? सी right now we are working on natural products. Like I am studying. I don't have a cosmetic background, or I am not from a cosmetic industry, but still I am studying. But we are trying to make products which are free from very heavy harsh chemicals. Okay. And which are safe for sensitive skin. Because I'll tell you, I have applied a lipstick I took from a vendor who were supplying for XYZ companies. Okay. So that matte lipstick was so drying. I have applied on my lips, and just next day my skin was peeling. Okay. So I thought कि यार this is something which every, मतलब मेरा sensitive skin है बहुत ज़्यादा. हाँ. तो I want something which is made for sensitive skin. Right. ऐसा नहीं है कि मार्केट में है नहीं, मार्केट में है, बट दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, राइट. अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बिजनेस ओनर हूँ तो मैं कितना ही स्किन केयर में पैसा खर्च कर सकती हूँ. नहीं ना, देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट हैव. करेक्ट. तो it has to be affordable. करेक्ट. तो मेरा विजन वही है. और यूएसपी पे वी आर वर्किंग. लाइक अभी तो इट्स हैंडमेड. Like we are making in a small batches, whatever the product we are making. So it's all handmade and in a small amount, or in the small batches we make products. Apart from that, I also want to work onto something which is plant driven. Okay. Like if we are using, like I don't use synthetic SPF in my lip balms. Okay. I use raspberry seed oil because that is the natural source, because that is oil. Achha. That is essential oil. Raspberry seed oil is essential oil. So you can use that as a natural SPF. Okay. So there I am studying few things. हाँ. कि how we can make this naturally, fully naturally. Right. We are working on it. But still I don't think it will be possible for us also to have a brand which is fully organic. Okay. I am not sure. I'm still in a doubt. But let's see what the journey takes. Like I have been working since 1 year now. And till now I have studied a lot of things in cosmetic, e-commerce, cosmetic industry, which is very new for me. I have never dealt in such things or such industries. But major problem cosmetic industry में what do you think? Like
एक तो you are saying कि too much chemicals are there. Other than this, do you find any major problem जो cosmetic industry में बहुत time से चल रही है, which you can perhaps change through your work? I think the expensive skincare. Okay, right, valid point. ठीक है, because I make products with turmeric powder, हाँ. green powder, this. So when your remedies is at your kitchen, हाँ. ठीक है, I will not support remedies because remedies भी आप daily नहीं कर सकते हो, True. ठीक है. तो but still there are few things जो आप कर सकते हो. Like people are using this whatever, I don't know, I forgot the word, but the thing is कि you can do your own skincare without relying on the product which even you don't know. You don't, because products में क्या होता है ना, they keep scientific words. नॉर्मल इंसान को साइंटिफिक वर्ड्स नहीं पता होते हैं. Of course. इवन अगर मैं अभी भी इंडस्ट्री में हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है कि अरे इसको तो विटामिन ई बोलते हैं, अच्छा इसको तो ये ऑयल बोलते हैं. तो दे आर कीपिंग साइंटिफिक वर्ड्स जो किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या लगा रहे हैं. तो आई थिंक ये चीज़ चेंज होना चाहिए. आई थिंक, एंड आई एम नॉट श्योर कि व्हाट एक्सपर्ट्स हैव तो एज देयर ओपिनियन. ए लेमैन कैसे किसी को पता चलेगा कि ये सेफ है उनके लिए? मतलब कोई पर्सन परचेज करने जाता है तो वो ऑब्वियसली चेक करेगा ना कि ये सेफ है या नहीं है. तो इज देयर एनी स्टैंडर्ड या कोई सिंपल चीज विच यू कैन शेयर कि ये वन कैन चेक दैट थिंग एंड वन कैन स्टे रेस्ट एश्योर्ड कि ये प्रोडक्ट सेफ है उसके लिए? See, I cannot say because every company use different product, right? But then industry कोई affiliation होगा, जैसे फूड इंडस्ट्री के लिए होता है ना FSSAI मार्क होता है, तो कॉस्मेटिक्स में भी कोई ऐसा क्वालिटी स्टैंडर्ड का कोई मार्क होगा ऐसा? हाँ, डर्मा टेस्टेड प्रोडक्ट्स. ओके. और उसमें भी अभी तक I don't know, even we are not derma tested. Okay. But it's like कि we are not, like I show the process. Whatever I'm making, I show the process कि okay, I'm using this oil. Even in my lip glosses, I use grapeseed oil, coconut oil, and vitamin E. So I don't think कि these oils are harmful for your skin. It is actually very nourishing. And you'll not feel even heaviness. You'll not feel heaviness on your lips if you're applying. So you're replacing SP with these oils? Yeah. So whatever products we are making, we are using essential oils, we are using seed oils, we are using products like the bases, like for lip balms we are making, we are using shea butter, cocoa butter. So these are the products which we are using to make our product. So what legacy you would like to leave as a business person? Anything which which uniquely resonates with your purpose of life? Anything which you want to do for the future, for the next generation? For the next generation, I would leave my learnings. कि not only as a business owner but also as a girl. Right. I would love to like, if I am very open to share my opinions, I am very open to share my journey, my experience with anyone. Right. So this is the only legacy I would leave behind. Ki okay, you can learn whatever I have learned, because I have always been learning with my journey. Right. That is the best way to learn actually. Correct. During the I job. didn't have any mentor. I didn't have anyone कि जिसने मुझे बैठा के guidance दे दी हो. Nobody. It was only me who was just going with the flow, was just going. I have faced failures, I have faced challenges, but eventually I have overcome everything. Great. So, how do you see the industry progressing in the next 5 to 10 years? Where do you see the industry going? See, with Unstoppable India, if I would say, कि content market is very booming. Okay. It's booming. अभी भी काफ़ी है. I think आगे
5 years 10 years के बाद भी ज़्यादा boom करेगी. Okay. And yes, in cosmetic industry also, with Nada Cosmetic, if I have a vision to make a brand which is 100% natural and chemical free, I think that will also improve, because nowadays people are very aware about what they are using. Right. Like they study properly ki what they are using. Yes. Correct. So I think that it will boom eventually. Like it will grow good. So geographically, have you identified any city, any state wherein you can do business better? No. Okay. Like I don't think, like I am fully home based. Okay. I'm working from home since 5 years. अच्छा अच्छा. So it's all about the dedication, and I have a team worldwide. Oh, worldwide. Yes. Okay. Globally, you're working. Yes, I am working globally and I have a team. So it's okay. Like you can work from anywhere, right? So you don't have to set your limitations to geography. Actually, it so happens that at one point in time, one starts identifying places where they can get better results, better demand of products. Because suppose we are putting breaking the hammer, like using the hammer in the wrong direction, लेकिन सोना तो कहीं और से निकलना है. So it is like that. So कुछ कम मेहनत से कहीं से ज़्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, और कहीं कहीं ज़्यादा मेहनत करने पे रिजल्ट आते हैं. सो डैट वे इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अगर जियोग्राफिकली पता चल जाए चीज़ें तो इट विल डेफिनेटली हेल्प. Correct. But see, if right now India is booming in startups. हाँ हाँ. Right, and most of these startups are coming from Hyderabad and Bangalore. So clients are connecting with us, and if they are connecting वहाँ से ही, मतलब they are connecting with us, तो it's fine ना कि वहाँ जाके हम क्यों अपना. हाँ, of course. नहीं, I'm not saying कि one has to go offline, but it's just that कि वो जगह पता चल जाती है ना, तो focus becomes more to that niche thing. Correct. जैसे मुंबई से we have few startups, mostly वहाँ businesses हैं जो अच्छा कर रहे हैं. अच्छा. Apart from that, Mumbai is only famous for actors and acting lines. तो Bangalore and Hyderabad, these two, मतलब वहाँ पर से I have मतलब dealt with 1,000 clients जो दोनों cities से रहे हैं. Because I have heard in few earlier digital work, so I've heard that some places are very unexplored, underpenetrated, because most of the time entrepreneurs वहीं पे काम करते हैं, which is test and tried. So जहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे people have achieved success, वहीं पे काम ज़्यादा होता है. तो इस तरह से वो places like West Bengal, कोलकाता, वो areas रह जाते हैं. वहाँ पे people say that there is a lot of potential for businessmen. Correct. I have few clients from there. हाँ. So I know their potential. Right. Because the way they talk na, हाँ. it gives you an idea. Right. Ki what potential they have. So it's like that. So Nida, any book that you would recommend for our audience to read? I would say read all books which is related to business. Any favorite book you have? One, The Diary of a CEO. Right. That's a very. We have already discussed about yes, it. And another book, I would say Atomic Habits. Atomic Habits. हाँ. That you can read. बाकी तो you can read, मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे. Every book has their own options and their lessons, right? Actually. So I have also read self-help books बहुत ज़्यादा, and they are very interesting. I love them. तो आप जो जितना पढ़ सकते हो पढ़ो. So अभी जैसे बहुत artificial चीज़ों में बहुत ध्यान दिया जाता है कि we have to look good, physical appearance should be better, internal things are not so taken care, because when we talk about skin care, it is more about external beauty, putting in cosmetics and all. So people have lost that point wherein they should also focus upon diet. So being an expert, what do you think कि diet का कितना बड़ा role है for skin care? Diet play a major role. It is very important what you eat. Right. Because if you are eating vegetables, fruits,
healthy diet, whatever you take, हाँ, healthy diet, तो that will actually help your skin. Right. You will glow. And water, coconut water. Okay. Drink too much coconut water. It is good for your skin. Coconut water. Correct. बिकॉज अभी एक रिसेंट में न्यूज़ आई थी, एक वरिंदर गुमान एक बॉडी बिल्डर थे, तो उनकी रिसेंटली में डेथ हुई है. सो दैट वाज अ बिग न्यूज़ एंड पीपल आर शॉक्ड फ्रॉम द एंटायर इंडस्ट्री एंड इट मेक्स अस अंडरस्टैंड वन big problem that people are so much focused about the appearance and तो वो जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, जो फाउंडेशन होता है, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं लोग. और जो एज यू हैव सेड दैट सोशल मीडिया आल्सो प्लेज अ रोल कि हमें जो दिखता है हम उसके पीछे भागते हैं. तो अगर कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है तो हमें चाहिए कि हम वैसी बॉडी बना लें, बट one does not understand कि क्या side effects हैं, what do they consume, and even problem ये है कि आज के influencers के साथ that they are not guiding the next generation properly. They are only showing. They are only showing off and they are not giving information. Correct. Except few influencers who are real good influencers जो हमेशा ये बताते हैं कि जो हमारे जो ancestors ने जो चीज़ें बनाई हैं, उन देसी चीज़ों को use करके भी you can have a good body. Correct. Similarly, स्किन केयर में भी कुछ देसी चीज़ें एज यू सेइंग कि प्लांट बेस्ड एंड देसी चीज़ों को यूज़ करके भी यू कैन गेट ऑप्टिमम स्किन केयर like you get from the artificial cosmetics. So it becomes very important to understand this point, क्योंकि हम examples देख रहे हैं ना कि ऐसा जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं तो वो शॉर्टकट हमें इंस्टेंट सक्सेस दे देगा, कुछ टाइम के लिए दे देगा, बट लॉन्ग रन में वो कभी काम नहीं आएगा. तो जब इस तरह की एग्जांपल्स आते हैं सामने तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट, इट्स लाइक बीइंग एन अलर्ट सिस्टम फॉर एवरीबॉडी की focus on your body. Focus on your instead of focusing instead of focusing on कि अच्छा ये ब्रांडेड बैग लेना है, ये आईफोन लेना है, तो ये सबसे बाहर निकल के इवन किसी ने कोई भी ब्रांड का स्किन केयर ले लिया है भी, किसी इन्फ्लुएंसर ने, पीपल के आजकल आए सी ना कि इफ आई एम अ बिग इमेज, इफ आई एम यूजिंग एनी प्रोडक्ट, सेम डे जो मेरे लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, दे विल परचेज इट. ब्लाइंडली. अरे बाबा, चेक ना कि इट्स सूटिंग योर स्किन और नॉट. सो everything is actually like that. मतलब I often wonder that we, after getting so much education also, we behave like we are not educated only. कि हम इतना blindly कैसे किसी चीज को follow कर सकते हैं. Correct. कि अगर किसी influencer ने कोई अच्छी चीज, कोई तारीफ कर दी किसी प्रोडक्ट की, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक की तारीफ कर दी, तो कोल्ड ड्रिंक कैसे अच्छा हो सकता है? Correct. It is good for, it's not good for ऐसा, but ऐसा भी नहीं है कि अच्छा है बुरा है, बट इट माइट बी अनहेल्दी फॉर समवन जिसका या तो शुगर प्रॉब्लम है या बच्चा जिसका थोड़ा लिवर कमजोर है. तो डिपेंड्स ना कि आप कैसे इंसान को दे रहे हो. हाँ राइट, वो डिपेंड करता है कि क्योंकि हर बॉडी के लिए वो सेम चीज नहीं हो सकती, वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती. करेक्ट. ऑल्दो आप कितना ही बना लो, हर टाइप के लिए बना लो आप, बट स्टिल अभी वी मेक प्रोडक्ट्स लाइक इट्स हैंडमेड, फुल्ली हैंडमेड. सो वी आर नॉट डूइंग ऐसा, कहीं से हम टेस्ट नहीं कराते हैं, बट आई हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स, सब पे टेस्ट होता है. एक महीना आप यूज करो प्रोडक्ट को, देन आप अपना फीडबैक दो कि अच्छा आपको कुछ एलर्जी हुआ क्या, या कुछ इरिटेशन हो रहा है, या कुछ भी चीज हो रही है. अच्छा, वो टेस्ट होता है, सब टेस्ट होते हैं. देन इट गोस टू द मार्केट. करेक्ट. मतलब even if we are making in a small batch, तो फर्स्ट बैच मेरे फ्रेंड्स फैमिली के लिए बनता है. कि ठीक है ये 10 लोगों का प्रोडक्ट है, 10 स्किन टाइप्स के लिए है, आप एक महीना यूज करो, एक महीने बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि ठीक है अब ये प्रोडक्ट वी आर लॉन्चिंग टू द मार्केट, अगर अब कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन. हाँ, वो डिफरेंट स्किन टाइप के हिसाब से भी होना चाहिए. Because we are not doing a derma test. So that becomes more important then. Because अगर derma test हो जाए तो फिर it's okay ना, short की सब सही है. But अभी क्या different skin types के साथ हम कर सकते हैं. As a small business like cosmetics
अभी स्मॉल बिजनेस ही है मेरा, हाँ तो उसमें वी कैन नॉट अफोर्ड हर प्रोडक्ट का हम डर्मा टेस्ट कराएं या हम लैब टेस्ट कराएं, सो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। अगर हम वही अभी सब कराने लग जाएंगे तो आई डोंट थिंक ही विल ग्रो। Right. So, Nita, how do you manage your difficult time, tough times? What is that which keeps you grounded, keeps you going? क्योंकि मुश्किल वक्त तो सबके जीवन में आता है. तो what is that which you have in you, or maybe the things which you believe in, which makes you feel कि मैं सब हो जाएगा, सब अच्छा होगा? कैसे मैनेज करते हैं? आई थिंक यहाँ पर माई पार्टनर प्लेज अ वेरी गुड रोल, Right. बिकॉज जैसा मेरा माइंडसेट है वैसा ही उनका माइंडसेट है, Right. तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ आई एम फेसिंग एनी चैलेंज तो ही इज देयर टू हेल्प मी आउट। ही इज वेरी मच, ही हैज अ वेरी पॉजिटिव माइंड। आई मस्ट से कि जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स ना, ही इज सो पॉजिटिव, लाइक इफ यू ट्राई टू ब्रेक हिम ना, ही विल नॉट इवन यू नो ऐसा ऐसे हिलेगा भी नहीं वो। That is important actually. तो वहां से मुझे लगता है कि दैट इज द ओनली कोर पर्सन जहां से मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, बिकॉज एनर्जीज आल्सो मैटर्स। हाँ. Correct. Surrounding matters. तो चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, और उसके अलावा आई थिंक कि वट एवर जर्नी वॉज माइन, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने इतनी सारी चीज़ों को ओवरकम करके मैं यहाँ तक आई हूँ, तो ये तो कुछ नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स. ये कुछ नहीं है। फिर अगर मैं ऑलरेडी इतने टाइम सारी चीज़ें करके यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे कुछ चीज़ ब्रेक नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ अगर ब्रेक होता है किसी चीज़ से या मुझे ब्रेक आता है, तो मैं बस थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ चीज़ों को लेके। मैं दिल से ज़्यादा सोचती हूँ किसी के लिए, तो मुझे वहाँ हर्ट होता है कि कोई अगर उतना मुझे नहीं वो करता, इवन इन द फ्रेंडशिप आई वॉज गिविंग माई 100%, वहाँ से नहीं मिला तो ठीक है, मुझे बुरा लगा। बट देन माई पार्टनर वॉज लाइक इट्स ओके, वी आर हेयर फॉर यू, डोंट वरी। बट डू यू हैव दैट, लाइक जो हम कह रहे थे डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन, सो दैट डिसिप्लिन इज देयर इन यू, लाइक आर यू अ प्लान्ड पर्सन, you do things with planning, or it is like at discipline you understand that discipline is something which has to be permanent. It is like persistent कि अगर Correct. कुछ प्लान कर लिया, अगर कोई चीज़ अपन मंडे को कर रहे हैं तो ट्यूसडे को भी करनी पड़ेगी, वेडनेसडे को भी करनी है, मन है तो भी, तो नहीं है तो भी करनी पड़ेगी. दैट इज़ वाई वी हैव पीपल लाइक रोनाल्डो, विराट कोहली, दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ बनाई है अपने अंदर, इम्बाइब करी है. तो डू यू थिंक लाइक यू हैव दैट थिंग इन योरसेल्फ? यस, डिसिप्लिन तो है मेरे अंदर। लाइक इफ आई हैव टू डू वर्क तो आई विल ओनली थिंक अबाउट वर्क। मतलब इवन आई डोंट लाइक, लोग करते हैं ना कि देखते देखते, मतलब ऐसे कुछ मूवी देखते देखते काम कर रहे हैं, तो मुझे वो भी ऐसा लगता है कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ काम की ऐसे करके। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो मुझे मतलब डिसिप्लिन के साथ साथ बी रिस्पेक्टफुल टू योर वर्क। राइट. अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आई थिंक आप उस चीज़ को ना आगे तक लेके जा सकते हो। वेरी नाइस. इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज अच्छी नीयत से अपन काम करते हैं तभी वो लॉन्ग रन में आगे बढ़ सकते हैं. करेक्ट. तो वही है कि बस अपना डिसिप्लिन तो है, बट उसके साथ बी रिस्पेक्टफुल जो भी आप कर रहे हो. So in today's time, like the discrimination, the toxic nature which is developed in the corporate, the burnout which is happening, wherein after few years of working, people don't even want to work. Now situation is something like that also, and discrimination is something which is very pervasive, and it is like everybody is surrounded with so many negative things happening. People are trying to become more robotic. as in सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम तक काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, वो डेली चलता रहता है. एंड वो क्रिएटिव, as you were saying that you are a creative person, and that is also a reason why you have entered into this entrepreneurship. तो वो जब अपन जॉब वाले साइकिल में आ जाते हैं तो वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट होने लग जाती है.
So how would you ensure कि this thing is not suffered with your employees? कि how will you try to make an ecosystem within your organization which is very promising, very progressive? How will you do that? I already told you कि I don't fix the limit कि 9 to 5 आपको करना है, उसके बाद आप घर जाओ. हाँ हाँ. इवन अगर मेरा ऑफिस भी होता है तो दे कैन गो एनी टाइम. इफ देयर वर्क इज डन दे कैन गो एनी टाइम. इट्स टोटली फ्री. आप जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. अगर काम आपने पूरा कर दिया, काम करके जाओ. काम नहीं हुआ है तो आपको 10 बजे तक भी बैठना पड़ेगा. अगर आप वो चीज़ प्रॉमिस कर सकते हो मुझसे, देन आई एम फ्री. मतलब आप ठीक है, आपको जैसे वर्क करना है अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज एवरी बॉडी वर्क डिफरेंटली, राइट. अगर आप उसको ही बाइंड कर दोगे तो आई डोंट थिंक कि वो फुल्ली ओपन अप हो पाएगी किसी चीज़ के लिए. Because why I'm asking you this question is the reason that there are many women employees who after marriage are not able to continue with their work in the same organization. Because and even while interviewing them एक question आता है कि what is your marriage plans? ये and even जो married होते हैं उनसे ये plan ये भी पूछा जाता है कि what is your like delivery plans and all. तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हर्ट भी करते हैं कि ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं. सो हाउ वुड यू इंश्योर कि इफ समवन एज अ वुमेन हैज़ बीन रिक्रूटेड इन योर कंपनी कि वो लॉन्ग रन तक विल स्टिक टू योर कंपनी? क्योंकि आफ्टर मैरिज obviously you have to create an environment which will give them this trust that they will be able to continue. Because ऑप्शंस कोविड के टाइम ये ऑप्शंस आ गए थे कि हाइब्रिड भी हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस. सो वर्क फ्रॉम होम वाज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फीमेल्स एंड इवन हाइब्रिड. तो आर यू थिंकिंग इन दोज लाइन्स और डू यू हैव some points which you have made up your mind? Because one thing is there that you are giving them the flexibility कि you have to complete your job and within your stipulated time frame जो भी तुमको ठीक लगता है, because everybody has their own caliber. But besides that, how will you ensure कि वो चीज़ हो पाएगी? वुमेन जिनको भी रिक्रूट करोगे, क्योंकि अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ होगा obviously they would be single, their status is single, but after marriage how will you ensure कि वो अगर वो एक अच्छे competent employee हैं वो with your organization, क्योंकि it is a challenge for many organization. Correct. क्योंकि वो continue नहीं करते हैं उसी organization से, क्योंकि culture अच्छा नहीं होता है. तो कुछ have you thought over it? Firstly तो we are focusing कि work from home ही रहे. Still if we want we can do like a meetups. Okay. Like weekends में या weekend weekdays के start में we can do this कि ठीक है. अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो मतलब honestly मैं भी वो person नहीं हूँ जो ऑफिस जाके काम करूँ. ठीक है, वो सपना था कि ऑफिस लेना है, बट नाउ आई नो कि कितना ट्रैवल है. पहले आप ऑफिस के लिए पहले ट्रैवल करो, टाइम वेस्ट करो. उससे बेटर आप घर बैठे बैठे जब आप काम कर सकते हो तो यू कैन डू दैट ना. वहाँ पर आपका क्या है, पीस ऑफ माइंड के साथ आप वर्क करोगे. आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है. तो उससे बेटर यही है कि आप वर्क फ्रॉम होम करो. अगर आपकी एफिशिएंसी वर्क फ्रॉम होम की है तो आप वर्क फ्रॉम होम करो. बिकॉज आई एम द पर्सन, मुझे किसी के साथ रह के काम करना पसंद नहीं है. अच्छा. मुझे थोड़ा घबराहट होता है अगर मैं किसी के साथ काम करती हूँ तो. मतलब मैं फुल पोटेंशियल के साथ अपना, अगर मेरे साइड में भी कोई बैठा है तो मैं नहीं कर पाती हूँ. ओके. और अगर मैं अकेले बैठी हूँ तो मैं एक रूम में मैं 12 घंटे भी बैठ सकती हूँ, मैं 16 घंटे भी बैठ सकती हूँ और मैं काम कर सकती हूँ. So you are a one woman army. Correct. You can do things by your own. Correct. And like having other person becomes an interference for you. Correct. And even your creativity. Correct. That is a valid point. And it happens with entrepreneurs and the people who want to do it, make it big and doing it alone. क्योंकि I believe जो mindset होता है ना, that is unique. Or vision is unique, mission is unique. Correct. So that cannot be वो
बांटा नहीं जा सकता। और फिर किसी और को अपन जोड़ लेते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट they also have the same vision and same dedication. Correct. Because it is like your baby. Correct. You start your company and you start growing it by working hard. It's like it's raising a child as raising a business or raising a company. Yeah. It's the same thing. So Neera, it was a very wonderful interaction, and Thank you. I never thought that a person like you who has just started, वो interaction इतना matured होगा. You have your story, your ideas seems to be a very seasoned story. Thank you. Which has a lot of experience. Nobody is able to judge कि the experience is as low as 1 year only. It also shows that there is a lot of potential which is and अभी picture बाकी है. Correct. So that way I am sure you will do good. Correct. And thank you for being a part of this podcast. You're welcome, and thank you so much you're most for welcome. inviting me. And I'm sure अभी जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी we can plan one more podcast. Sure, definitely. And हमारी ऑडियंस को भी आई एम श्योर ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और हम इस तरह से आगे भी ऐसे ही गेस्ट को बुलाते रहेंगे जो अपनी स्टोरी से, अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है वुमेन लीडर्स को आगे बढ़ने की। और होता क्या है कि जो कॉन्वर्सेशन हम करते हैं, जो जिस सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, वो बहुत बार नेगेटिव हो जाती है और हम अपनी पोटेंशियल को समझ नहीं पाते हैं। और मान लो आपके पार्टनर या आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपको काफ़ी नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, या आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हैं, और आपको कॉन्फिडेंस देने के बजाय डिस्करेज कर रहे हैं। इट डेफिनेटली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस बात को समझें, बजाय उनकी बातों को मानने के आप अपने ड्रीम्स के साथ जुड़े रहें। और ऐसा भी आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए लाइबिलिटी बन रहा है, जो आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेशन में, तो आप उस रिलेशन को आप फिर भी छोड़ सकते हो, आप उस फ्रेंड को भी फिर भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप अपने सपनों को नहीं छोड़ सकते हो, जो आपके लिए आप जिससे जुड़े हुए हो, जो आपका जीवन का पर्पस है। तो हमेशा आपको प्राथमिकता अपने सपनों को देनी चाहिए, बजाय उस रिश्ते को जो लाइबिलिटी बन जाता है आपके सपने के लिए। सो इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट फिनिश करता हूँ, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।